Today in this lecture, we will be solving exercise 4.2. Here, first, we will be learning the method of factorization here. This method we already done in class 9th as well as in class 8th, where we were calling this method as middle term splitting method, or we call it as factorization method. So whatever the middle term is here, we will split this middle term into two parts. So first in detail, I will be discussing the rules to split the middle term. And middle term is always the coefficient of x. So the term which is containing x is called as middle term in the quadratic equation. Suppose I am taking the first part, which is x squared minus 3x minus 10. Here, if I need to split the middle term, I have to take the constant, that means 10. I have taken constant 10 and the coefficient of x square, which is 1 here, so doesn't matter. I will find the factors of number 10, which are 2 and 5. So using these two factors, I should have one number minus 3, either by subtracting these numbers or by adding these numbers. So I will take it as x squared. If I take 2x minus 5x, I will get minus 3x, because माइनस का साइन है, बड़े नंबर के आगे साइन लगाएंगे माइनस का तो हमें मिल जाएगा. तो बड़ा नंबर -5 है, तो -5x प्लस 2x माइनस 10. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं. आपको माइनस का 3x चाहिए और माइनस तब मिलेगा जब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस साइन आएगा. ठीक है, अब हमारी मिडिल टर्म टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, ये हमने देख लिया. After splitting middle term, from first two terms we will take something common if it is there, and from next two terms we will take something common if it is there. From these two terms, x is common, so it will be x minus 5. Common means दोनों में होता है, so it is x minus 5. And from these two terms, 2 is common, so this is also x minus 5, like this. Now x minus 5 अगर हम इन दोनों टर्म्स में देखें तो यहाँ पे हमें कॉमन दिखाई दे रहा है. हम x minus 5 को कॉमन ले सकते हैं ऐसे. तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा. So this is factorized, and this method of factorization is called as factorization method or middle term splitting. But आपको roots निकालने हैं, so we will put these factors is equals to 0. If I put x minus 5 is equals to 0, I will get x is equals to 5, because जब minus 5 को वहां shift करेंगे तो it will become plus 5. Similarly, if I put x plus 2 is equals to 0, I will get x is equals to minus 2, because जब मैं plus 2 की terms को उस side shift करूंगी, I will get minus 2. These are the roots of this equation. I think clear हो गया होगा. Let us take the next question, second part, which is 2x squared plus x minus 6 is equals to 0. Here also I will go for middle term splitting. Rule is very clear. I will take constant, I will take coefficient of x squared in all the questions whatever we will be solving. The factors 2 and 6, इन दोनों के अगर हम factors लें तो 2 होता है, 3 और 2 हो जाएगा. So इसमें से दो नंबर्स हमें निकालने हैं सारे फैक्टर्स को यूज करके, जिनको प्लस या माइनस करके प्लस x हमें मिल जाए. So it is very simple. 2x square will come as it is. I need 1. So if I multiply 2 and 2 means it will be 4. 4 minus 3. So I will get x. So positive चाहिए तो बड़ा नंबर हो जाएगा पॉजिटिव और छोटा नंबर हो जाएगा नेगेटिव, ऐसे. And minus 6 is equals to 0. Very important. So the middle term is divided into two parts. In the next step, what we will be doing, we will be taking common factor from first two and common factor from next two. Here, the common thing is 2x only. तो जो भी हम कॉमन लेते हैं, अगर आपको कॉमन समझ नहीं आता तो जो आपने कॉमन लिया उससे हम इस टर्म को डिवाइड कर देते हैं. जब 2x स्क्वायर से 2x को डिवाइड करेंगे तो खाली x बचेगा, और 4x को जब 2x से डिवाइड करेंगे तो ओनली 2 बचेगा.
ठीक है। एंड हेयर हम जब बहुत ध्यान से देखें तो दोनों में माइनस है, तो माइनस बाहर ले लिया एंड 3। सो अगर हम 3x को 3 से करेंगे तो x बचेगा और इट विल बी +2। सो ये हमें क्लियर हो गया कि इस टर्म में और इस टर्म में हमारे पास जो कॉमन टर्म है वो ये टर्म है, ये कॉमन है दोनों। सो इसको हम बाहर ले लेते हैं, x + 2 को हमने बाहर ले लिया। तो अब जब ये यहाँ से हट गया तो खाली 2x बचा, और जब ये यहाँ से हट गया तो खाली -3 बचा। एंड वी आर पुटिंग इट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें रूट्स निकालने हैं। रूट्स का मीनिंग होता है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ एक्स, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रूट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स। क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यूज ही आने वाली हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए। एंड इफ आई पुट x + 2 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस विल गिव मी, बिकॉज 2 जब उधर जाएगा तो it will be minus. The value of x is -2. Similarly, if I put 2x - 3 is equals to 0, here be careful, माइनस प्लस की गलती सभी बच्चे कर देते हैं normally. So -3 को उधर भेजेंगे, so we will get 2x is equals to 3, और 2 मल्टीप्लाई में है, इसको वहां भेजेंगे, it will be 3/2. So 2 values of x we have after solving this. So first value of x is this and second value of x is this. I think it is clear to you. Next question लेते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया। सबसे बड़ी मुसीबत जो बच्चों को लगती है स्क्वायर रूट, ठीक है, बट ये एक्चुअल में बहुत इजी होता है। सुनिए ध्यान से मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ इसमें। यहाँ पर देखो, मैंने पहले ही बताया था कि x² का कोफिशिएंट लेना है और कांस्टेंट लेना है, ठीक है। अगर हम इसके फैक्टर्स लें तो ये तो √2 ही हो जाएगा। 5√2 के फैक्टर्स क्लियरली 5 और √2 हो जाएंगे, ठीक है। अब इन सब फैक्टर्स को मिलाकर हमें कोई 2 नंबर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं, प्लस या माइनस करके हमें क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। तो बहुत सिंपल है, एक तो 5 हो गया और √2 और √2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट 2, और इनको ऐड करते हैं तो वी विल गेट 7। फैक्टर्स हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं ना, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। √2x², 7x को लिख लेते हैं 5x + 2x + 5√2, ये हो गया। अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ओनली x कॉमन हमें नजर आ रहा है। तो अगर ओनली x कॉमन है तो ये हो जाएगा √2x + 5, और यहाँ पर तो कॉमन वैसे तो नहीं दिख रहा, लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि √2 into √2 is 2, यानी इस 2 को हम कह सकते हैं √2 का स्क्वायर। और अब हमें समझ में आएगा कि √2 तो कॉमन है भाई, एंड इट इज √2x + 5, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब ये दोनों में कॉमन आ गया। अगर जो कॉमन टर्म है उसको हमने साइड ले लिया ऐसे। अब अगर इसको बाहर लिया तो यहाँ खाली x बचा, इसको बाहर लिया तो यहाँ खाली √2 बचा, एंड वी विल पुट इट इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको 0 पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा √2x + 5 इज इक्वल्स टू 0। दूसरे वाले को 0 पुट करते हैं तो x + √2 इज इक्वल्स टू 0। ये +5 है, इसको हम वहां भेज देते हैं। √2x इज इक्वल्स टू, वहां जाकर माइनस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये वहां जाकर डिवीजन में हो जाता है। सो 1 रूट इज दिस, दूसरा रूट इसको वहां भेजेंगे तो ये प्लस है, वहां जाके माइनस, दिस इज द सेकेंड रूट। सो दीज आर 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हियर जब भी हमें किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिखे तो सबसे पहला काम हमें करना है एलसीएम, ताकि हमारी जो मुसीबत है फ्रैक्शन वाली, जो हमें क्वेश्चन को देखने में बहुत मुश्किल बना रही है, वो इजी हो जाए। अब यहाँ पर 8 हमने कॉमन ले लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लिया हमने 8 × 2,
16x square minus 8 into x 8x plus 1 is equals to 0. अब इस 8 को हम वहां भेज देते हैं, तो दिस इज 16x square minus 8x plus 1 is equals to 0. अब जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है उसका रूल तो क्लियर है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है और कांस्टेंट लेना है. अब x स्क्वायर के कोफिशिएंट में तो 16 है, 2 2 2 2. अब इन सभी फैक्टर्स से कोई दो नंबर जिनको प्लस करके या माइनस करके -8 आ जाए. तो आप देखो ये दो जो 2 है इससे एक 4 आ गया, ये जो दो 2 है इससे एक और 4 आ गया. इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 8 मिल जाएगा, लेकिन हमें तो -8 चाहिए. जब माइनस चाहिए और दोनों को ऐड करके मिल रहा है तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, दोनों को माइनस लगा दो. दोनों को माइनस लगाने से हम जोड़ेंगे तो -8 बन जाएगा. ठीक है, ये हो गई बात मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की. अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे और नेक्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे. फर्स्ट 2 में अगर हम कॉमन की बात करें तो 4x कॉमन है, तो अंदर बचा 4x minus 1. नेक्स्ट 2 में अगर हम देखें, देखो इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 4x minus 1 है, लेकिन यहाँ पर -4x plus 1 है. साइन उल्टे लग रहे हैं, तो ऐसे केस में हम -1 कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे दोनों ब्रैकेट की जो टर्म्स हैं वो सेम बन जाए. आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी. अब 4x minus 1 दोनों में कॉमन है, आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है. 4x minus 1 को आप कॉमन ले लीजिए. अगर कॉमन लिया तो यहाँ तो सिर्फ 4x बचा, तो यहाँ पे 4x हो गया और यहाँ पर -1 दिखाई दे रहा है, -1 हो गया. अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर दोनों सेम वैल्यूज हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यूज जो रूट्स हैं वो सेम आने वाले हैं. अगर हम 4x minus 1 को 0 करते हैं, दोनों को ही 0 करना पड़ेगा, और 1 को उधर भेजते हैं तो ये 1 हो गया और x की वैल्यू आ गई 1/4. इससे भी x की वैल्यू आ जाएगी 1/4. सो दो रूट आए, दोनों सेम आए. अब उसने रूट्स बोला है, तो अगर आप एक रूट निकालते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे. आपको दोनों ही रूट बताने हैं, चाहे वो सेम ही क्यों ना हो, आपको सेम ही बताने पड़ेंगे. ठीक है जी. अगला, अब ये है 100x square minus 20x plus 1. अब जैसे मैंने कहा शुरू के 4 क्वेश्चंस मैं कर चुकी हूँ. यहाँ पे 100 है आपके पास, तो 100 और यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके फैक्टर्स ले लीजिए. अब 100 के फैक्टर अगर हम देखें तो 2 और 5, बिकॉज 100 को मैं 10 और 10 कंसिडर कर रही हूँ. ठीक है, और 10 के फैक्टर्स 2 और 5, दूसरे 10 के फैक्टर्स 2 और 5. वैसे तो हमें यहाँ समझ आ रहा है कि 10 + 10 20 होता है, लेकिन जब फैक्टर्स का रूल है तो फैक्टर्स से भी समझ लीजिए, बात तो एक ही है. सो इट विल बी 10 एंड दिस विल बी 10. 10 + 10 20. -20 चाहिए, ये बात पिछले क्वेश्चन में डिस्कस हो गई थी कि 100x स्क्वायर हुआ, माइनस का 10x हुआ, माइनस का 10x हुआ, प्लस में 1 हुआ. ठीक है, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं वापस हमें यहीं पहुंच जाना है. अगर नहीं पहुंचते हैं तो गड़बड़ है भैया, इसको ठीक कर लो अपने क्वेश्चन को. अब इन दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों में कॉमन ले लो. इन दोनों में कॉमन अगर हम देखें तो 10x इन दोनों में कॉमन है, सो इट इज 10x - 1. अब ये पहले क्वेश्चन वाली सिचुएशन आ गई कि ये 10x - 1 हो गया, तो अब अगले वाले में साइन उल्टे हैं, यानी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये भी बन जाएगा 10x - 1. सो हमारे पास बना 10x - 1 इज इक्वल टू 0, 10x - 1 इज इक्वल टू कॉमन लेने के बाद. अब -1 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/10. ये हो गया. सिमिलरली दूसरे वाले से भी x इज इक्वल टू 1/10 हो गया. आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी. अगला क्वेश्चन लेते हैं. यहाँ पर फाइंड 2 नंबर्स. देखो जब भी कुछ हमें फाइंड करने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब हमें उन नंबर्स को एज्यूम करना पड़ेगा whose sum is 27. वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम इस केस में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं. हम मान लेते हैं लेट नंबर्स बी, एक नंबर को हमने मान लिया x, क्योंकि सम 27 है.
दूसरे नंबर को हम मान लेते हैं 27 माइनस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर दो नंबर्स का सम 27 है, अब आप कंफ्यूज होते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं x माइनस 27 लिख देते हैं, लेकिन आप ये समझो कि एक x है और दूसरा x माइनस 27 है, तो उनका सम 27 कैसे हो गया, उनका सम तो 2x माइनस 27 होगा। तो ये बात तो नहीं बनी। लेकिन जो हमने माना है इसको अगर हम ऐड करते हैं x प्लस 27 माइनस एक्स, अब ये कट गया, सम 27 आ गया। तो ये चेक भी कर लेते हैं साथ साथ, हो गया। एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x इंटू 27 माइनस एक्स, ये आपका है 182। ठीक है, इसके बाद नंबर्स निकालनी है, तो बहुत बहुत इजी है। अगर x और 27 माइनस एक्स का प्रोडक्ट ये है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। एक्स स्क्वायर नॉर्मली प्लस का होना चाहिए, तो इन टर्म्स को उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वहां जाकर, ये हो जाएगा माइनस का 27x और ये हो जाएगा प्लस का 182 इज इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने अभी पहले डिस्कस की है, कांस्टेंट के फैक्टर्स लेंगे और इसके कोफिशिएंट के फैक्टर्स लेंगे। कांस्टेंट के फैक्टर्स 182 है, इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो फैक्टर्स हो गए 2 7 एंड 13। इन तीन फैक्टर्स को यूज करके हमारे पास बनना चाहिए 27। तो बड़े आराम से हम इसको देखें तो ये 14 है और ये 13 है, और इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 27। तो इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब माइनस है तो दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इस वीडियो को देखने के बाद आप इक्वेशन खुद करके देखिए, समझ आ गया, करेक्ट आंसर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा देखो वीडियो, फिर से करो। सो अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, कॉमन x हो गया, सो इट इज x माइनस 14। इन दोनों में माइनस 13 कॉमन हो गया, सो इट विल ऑल्सो बी x माइनस 14। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो x माइनस 14 कॉमन है। अब x माइनस 14 हमारा कॉमन हो गया और यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा माइनस 13। सो इससे अगर हम x माइनस 14 को 0 करते हैं तो x की एक वैल्यू 14 आ जाती है। अगर हम x माइनस 13 को 0 करते हैं, x की दूसरी वैल्यू 13 आ जाती है। यानी जो नंबर है x की वैल्यू एक 14 और 13, दोनों नंबर, एक 14 नंबर आ गया, एक 13 आ गया। अगर आपको चेक करना है तो इनका सम देखो, सम कितना आ जाएगा 27। देयरफॉर लास्ट में लिखना है, देयरफॉर नंबर्स आर 14 एंड 13। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ये कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है अगला नंबर, जैसे 2 है, 2 का अगला 3 हो गया, 5 है, 5 का अगला 6 हो गया। तो अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकालने हैं तो हम उनको एज्यूम कैसे करेंगे, हम मान लेंगे लेट नंबर्स बी, x है, इसका कॉन्जिक्यूटिव x प्लस 1 होगा। ध्यान से पढ़ना है, कई बार कॉन्जिक्यूटिव इवन लिखा होता है, कई बार कॉन्जिक्यूटिव ऑड लिखा होता है। इस क्वेश्चन की तरह कुछ भी नहीं लिखा, ना ऑड लिखा ना इवन लिखा। जब अगर ऐसे लिखा है तो हम x और x प्लस 1 लेंगे, लेकिन अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन लिखा है या ऑड लिखा है, अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव इवन लिखा है तो आप x और x प्लस 2 लोगे, क्योंकि एक इवन के बाद अगला इवन 2 ऐड करके आएगा, 2 के बाद नेक्स्ट इवन 2 ऐड करके आएगा, 4 के बाद नेक्स्ट इवन 2 ऐड करके आएगा, ठीक है, 6 के बाद नेक्स्ट इवन 2 ऐड करके आएगा। वैसे ही अगर ऑड लिखा है तो भी अगर पहला 3 है तो उसमें 2 ऐड करोगे तो अगला 5 आएगा। सो कॉन्जिक्यूटिव इवन ऑड में जो नंबर्स आप एज्यूम करेंगे
वो एज्यूम करेंगे x और x+2, लेकिन इस सिचुएशन में आप जो नंबर्स एज्यूम करेंगे वो एज्यूम करेंगे x एंड x+1। यहाँ ये कह रहा है सम ऑफ whose squares is 365, यानी इनके स्क्वायर्स का सम है 365। स्क्वायर ऑफ x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x का स्क्वायर x स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर। यहाँ बच्चे बड़ी गलती करते हैं, यहाँ सोचते हैं कि x²+1 स्क्वायर। नो, उसने कहा इस नंबर का स्क्वायर, तो इस नंबर का स्क्वायर तो पूरे x+1 का स्क्वायर होगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 365। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए ये तो x² हो गया, यहाँ पर a+b का स्क्वायर लगाइए। a+b का स्क्वायर हमें पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, a² + b² तो सभी कर देते हैं, लेकिन 2ab छोड़ देते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तो हमें पता है ना, ये तो हमें पता है, लेकिन फिर भी गलती करते हैं। सो इसको करेंगे x² + 1 + 2x, ये नहीं भूलना, एंड इज इक्वल्स टू 365। अब जो ये x² है ये बन गया 2x² + 2x। अब 365 को इधर ले आओ, 1 - 365 इज 364 इज इक्वल्स टू 0। अब सभी में एक कॉमन फैक्टर 2 नजर आ रहा है, और अगर ऐसा हो तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड। उससे क्या होगा, इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। x² + x माइनस 364 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, ये हो गया। अब 182 के फैक्टर्स हमने पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। 182 के फैक्टर्स थे 13 एंड 14, 2 9 18, 9 13 7 है ना, 13 एंड 14। सो अब हमें प्लस का चाहिए, तो बड़ा नंबर प्लस हो जाएगा, छोटा नंबर माइनस हो जाएगा। -182 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, अगले दोनों में से भी कॉमन ले लेते हैं -13, और हम इसको x + 14 इंटू x - 13 ले लेते हैं। अगर हम x + 14 को 0 करते हैं तो x की वैल्यू -14 आएगी, विच इज नॉट एक्सेप्टेड, विच इज रिजेक्टेड। दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड बिकॉज उसने कहा है पॉजिटिव, हमारा आ गया नेगेटिव, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। अगर हम x - 13 को 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 13, तो x की एक वैल्यू 13 आ गई। अब दूसरा नंबर भी लेना है, वो नेक्स्ट नंबर होगा, बिकॉज हमने 13 + 1 14। सो देयरफॉर नंबर्स जो हमारे आए वो आए 13 एंड 14। दिस इज द आंसर। इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव altitude of a right triangle is 7 centimeter less than the base। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में। जब राइट ट्राइंगल की बात हो रही है तो राइट ट्राइंगल बना लो। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम ऑल्टीट्यूड, दिस इज द ऑल्टीट्यूड, ठीक है, इसे हम ऑल्टीट्यूड कहेंगे, ठीक है। बेस से ये 7 सेंटीमीटर लेस है, तो हमें तो बेस भी नहीं पता है ना, और हाइपोटेन्यूज 13, हाइपोटेन्यूज तो पता ही है, 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो दूसरी साइड हमें निकालनी है। तो जब हमें बेस नहीं पता तो हम मान लेते हैं ना, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर। जो बेस है वो कितना हो गया, x सेंटीमीटर हो गया। अब उसने बोला कि ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, मतलब बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये हो जाएगा x - 7, ये हो जाएगा x - 7। सो इट इम्प्लाइज ऑल्टीट्यूड इज x - 7, क्योंकि उसने कहा था कि जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, तो कम मतलब तो माइनस होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम को हम बड़े अच्छे से जानते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है।
13 square is 169. A minus B whole square. A square plus B square minus 2AB. Remember always, don't forget the formulas, use them properly. A square plus B square minus 2AB. This term is usually missed. Do not miss this term. So minus 14x plus x square. Now, x square plus x square we can call as 2x square minus 14x. And if I transfer this, it will be minus 120 is equals to 0. I can see 2 common here. तो हम 2 से डिवाइड करते हैं तो it will be x square minus 7x minus 60 is equals to 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ले लेते हैं फैक्टर्स. ठीक है, 60 के फैक्टर्स अगर हम करें तो 60 के फैक्टर्स होते हैं 6 into 10. देखो आराम से करा करो फैक्टर्स. 6 के फैक्टर्स हो गए 3 और 2 और 10 के फैक्टर्स हो गए 2 और 5. आपको नंबर चाहिए -7. तो आप देखो कि ये नंबर बनता है 4. तो नंबर बनता है ये 12 and 5. जिसको माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा. सो इट विल बी x स्क्वायर. बट माइनस का 7 चाहिए तो बड़े नंबर के आगे माइनस लगा दो, छोटे नंबर के आगे प्लस लगा दो एंड माइनस 60 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में कॉमन ले लीजिए. x कॉमन है तो ये हो गया x माइनस 12. इसमें 5 कॉमन है तो ये हो गया x माइनस 12. अब आप देख रहे हो x माइनस 12 दोनों में कॉमन है और x माइनस 12 अगर कॉमन है तो ये हो गया x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अगर हम x माइनस 12 को 0 करते हैं तो जो हमें x की वैल्यू मिलेगी, तो x माइनस 12 को अगर हमने 0 किया तो x की वैल्यू हमें मिल गई 12. अगर हमने x प्लस 5 को 0 किया, x की वैल्यू मिल गई -5. दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड बिकॉज कोई भी लेंथ कभी भी माइनस नहीं होती. तो ये वैल्यू x आपकी 12 आ गई. तो उसने यही कहा था कि दोनों साइड्स निकालो. देयरफॉर जो बेस है आपका वो तो आपका 12 सेंटीमीटर आ गया और जो आपका ऑल्टीट्यूड है वो 12 माइनस 7, x माइनस 7 है ना, सो इट विल बी 12 माइनस 7. So 12 minus 7 is 5 centimeter. Next question number 6. थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है. स्टेटमेंट क्वेश्चंस में समझ में आता है, ऐसी बात नहीं है. बच्चों को लगता है स्टेटमेंट क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, लेकिन आप ध्यान से पढ़िए. 2 बार 3 बार 4 बार स्टेटमेंट पढ़िए, आपको समझ में जरूर आएगा. कॉटेज इंडस्ट्री है, कोई पॉटरी आर्टिकल्स बना रहे हैं वो पर डे. उन्होंने ऑब्जर्व किया, it is observed on a particular day that cost of production of each article, very important, cost of production of each article is 3 more than twice the number of articles produced. Very important. Cost of production of each article is 3 more than twice the number of articles produced. And if total cost of production on that particular day was 90, जो total cost थी production की वो कितनी थी? 90. So we have to find out the number of articles produced and the cost of each article. 2 चीजें हमें निकालनी है. एक हमें निकालना है number of articles, दूसरा निकालना है cost of each article. So हम क्या करते हैं, इसमें assume करते हैं. जो भी हमें निकालना है उसको हम assume कर लेते हैं. हम मान लेते हैं let number of articles produced be x and cost of each article is rupees y according to question. अब हम अपने क्वेश्चन में जाएंगे. cost of production of each article, cost of production of each article is y. ठीक है, 3 more, that means plus 3, twice the number of articles produced. Number of articles produced were x, so 3 more than twice the number of articles produced. अब total cost of production देखो. अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट y रुपीज है और हमने इतने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए. सपोज आप मार्केट में जाते हो,
आप शॉपकीपर से 1 पेन लेते हो और वो कहता है कि 10 रुपीज का एक पेन है, फिर आप कहते हो कि चलो ठीक है मैं 5 पेन खरीद लेता हूँ, तो आप रेट कैसे निकालते हो? 5 को, नंबर ऑफ पेन को 1 पेन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको समझ में आता है कि 50 रुपीज आपको देने हैं। सेम चीज यहाँ पर है कि हमारे पास एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो y रुपीज है और इतने आर्टिकल हमने बनाए, तो टोटल जो वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, x into y is equals to 90. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो इक्वेशंस हमारी फ्रेम हो गई। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड बोथ द रिक्वायर्ड थिंग्स। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पढ़ के समझ ना आए दोबारा पढ़िए, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। सो x इंटू 2x plus 3 is equals to 90. So this is 2x square plus 3x is equals to 90. So this is 2x square plus 3x minus 90 is equals to 0. अब यहाँ पर जो फैक्टर्स हम लेंगे, अब जैसे ये x स्क्वायर के साथ में यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 90 है। अब आप फैक्टर्स ले लीजिए, 2 हो गया, 90 को 9 और 10 में देखो तो समझ में आएगा। 10 को लिया 2 और 5, 9 को लिया 3 और 3। तो अब हमें नंबर क्या चाहिए, बीच में 3 चाहिए। 3 के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 3 को हम देखें, अगर 5 और 3 मिलके बनते हैं 15, और अगर 4 और 3 को देखें तो ये मिलके बनता है 12। 15 और 12 का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो बनता है 3 ही हमें चाहिए। तो हम सिंपल करेंगे 2x स्क्वायर, अब प्लस का साइन चाहिए तो बड़े नंबर को प्लस ले लेते हैं, छोटे नंबर को हम माइनस ले लेते हैं। माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 2 यानी x कॉमन है, तो दिस इज 2x प्लस 15। यहाँ पर माइनस क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15। अब 2x प्लस 15 दोनों में कॉमन आ गया, सो 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6। अब इससे तो नेगेटिव आएगा तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा, क्योंकि जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और इससे x की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसका मतलब जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड है वो 6 है। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको कॉस्ट आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में आप y निकाल लीजिए, तो x की जगह 6 रखेंगे, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 3 15। So 15 rupees is the cost of one article and number of articles produced was 6. और अगर हम x into y करते हैं तो वो 90 ही आता है। So that is the correct answer. I hope you understand what I was explaining throughout the video. If you like the video, please subscribe to my channel and just press the notification bell for the upcoming videos. Thank you very much.